You got the first position, all India rank, first position. What mental space one goes through while they are preparing for UPSC exam? It's the biggest level of torture you can give to yourself. Physical, mental, emotional, financial, all levels of torture. मैं ये मानती हूँ लाइफ अपने आप को दुखी करने के लिए नहीं है. अगर आप दुखी हो रहे हो तो छोड़ दो. ज़रूरी थोड़ी है अपने आप को परेशान करना. And in 2014, she didn't just win the case, she cracked UPSC in 2014 with All India Rank 1. There was another case where you rescued 340 kids. 335 child unwanted because some of them had just achieved the age of 18 on paper. ऐसा होता है, do you have that space for yourself to make change, or कि जितने भी politicians हैं they are driving the world? As officers, mostly चीज़ें आपसे इनिशिएट होती हैं. दिक्कत वहीं आती है जहाँ कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपकी कुछ एक इंटेंशन थी और किसी एक पॉलिटिशियन की विदाउट नेमिंग एनीवन, yes, I will say this, and you see these people bending in front of politicians? Ira ma'am, you cleared one of the toughest exams in the country, UPSC, 4 times. मैं थोड़ा उससे पहले जाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन आप उठे तो कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं तो आपने कहा सिविल सर्विसेज क्रैक करते हैं. ऐसा नहीं हुआ. उससे पहले आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आपने एफएमएस से अपना एमबीए किया. यू वर्कड विद कोका कोलाज, यू वर्कड विद कैडबरीज. उसके बाद आपको लगा कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना. तो ऐसा वो क्या क्षण था जब आपको लगा कि यार ये मेरे को कॉर्पोरेट में काम नहीं करना, अब मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है? when I shifted to Delhi and यहाँ पे सिविल सर्विसेज के बारे में कोई नहीं सोचता. I was born in Meerut and that's where relatively people know about civil services and you know उस बारे में conversation थोड़ी बहुत तो आसपास में कहीं होती है. It doesn't happen in Delhi. So I did the usual thing that everybody does, but that problem of wanting to do something जिसमें आप कुछ positive world में add कर रहे हो. And I don't say corporates don't do that, but I wanted a direct interaction, direct hands-on work like that. So then I decided to quit and give civil services. And I was doing very well. I was treated very nicely. But मुझे कहीं पे ये problem हो रही थी कि मेरे so I'll tell you, there was a point I was working 12-hour days. And company was appreciating that. ऐसा नहीं है. But मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 12 घंटे काम किया and there's nobody whose life you've made better. There's nobody who will say कि oh my God, because of her, हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ. सो दैट वाज माय मोटिव एंड आई डिसाइडेड टू क्विट बिकॉज ऑफ दैट कि 12 घंटे अगर मैं देश के लिए काम करूँ, मैं अपनी सोसाइटी के लिए काम करूँ, तो देयर सो मच मोर आई कैन तो सो मेनी लाइव्स आई कैन प्रॉब्ली मेक बेटर. सो दैट वाज माय मोटिव. हमारे बहुत सारे लोग ऐसे सुन रहे हैं हमें जो चाहते हैं यूपीएससी में अप्लाई करना, और या जो चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनके भतीजा भतीजी दे शुड अप्लाई फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम. वो पहले अटैम्प्ट में, कई लोग, बहुत ही कम लोग होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा अटैम्प्ट में पहुंच जाते हैं. वो क्या प्रोसेस क्या होता है? व्हाट मेंटल स्पेस वन गोज थ्रू व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम? So I always say this, it's a physical, mental, emotional, financial, social, psychological, all levels of कुछ torture. बचा नहीं है मतलब. It's the biggest level of torture you can give to yourself. Torture. Yeah, it's actually a torture. And it's self-inflicted. Because there is no reason why you should be doing it for other people. दूसरा चीज़, it's not a compulsory part of life, right? It's not class 12th कि उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है ना? It's something that you choose to give. So, and it's a torture on all levels. So, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना? It is to keep doing something without knowing if you'll ever succeed. That's the biggest problem. आप सेम चीज़ सालों तक करते हो और आपको पता ही नहीं है कि कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा. तो विदाउट रियली नोइंग इफ देयर बी अ पॉजिटिव एंड टू दिस, आप मेहनत करते हो. दैट्स द टफेस्ट पार्ट. पीपल डोंट रियलाइज इट. एंड सबको आप होप तो रखते ही हो. अगर आपके पास होप नहीं है तो आप दोगे कैसे? फिर तो आप दोगे ही नहीं ना, अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल ही नहीं होगा. बट दैट कंटिन्यूइंग ऑफ दैट होप एवरी ईयर टू ईयर, दैट्स द बिगर प्रॉब्लम. अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना, लोग एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाते हैं और वो होप करने के लिए क्या करने लगते हैं, दे स्टार्ट एक्सटर्नलाइजिंग द रीज़न दे डिडंट क्लियर. एंड इस वजह से वो और नहीं क्लियर करते, क्योंकि इस साल मैं बीमार पड़ गया था, इस साल मेरे घर में ये हो गया था, इस साल में मुझे
ये छूट गया था इस साल, वो हो गया था इस साल, वो हो गया था, या मेरे पास टीचर्स अच्छे नहीं हैं, या मेरे पास मेंटर्स नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब तक आप दूसरों को एक वो बनाते रहोगे ना अपना रीज़न फॉर फेलियर, तब तक आप फेल ही होते रहोगे। जिस दिन आप ये मानोगे कि देखो मैंने इस चीज़ को ठीक से हैंडल नहीं किया, मैंने ये पढ़ाई नहीं करी, मैंने यहाँ पे ये किया, मैंने सर्कमस्टांसेस को अपने ऊपर हैवी होने दिया, उस दिन आप सक्सीड भी कर जाओगे। बट प्रॉब्लम वही होती है कि हम कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नलाइज करते रहते हैं। जैसे आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरा जो फर्स्ट ईयर था, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2010 वाला, उस साल मैं एग्ज़ाम के दौरान बहुत बीमार थी। वो ना चेंजिंग सीजन में पेपर हुआ था, आई रिमेंबर अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में था, दैट्स द प्रिसाइज टाइम जब चेंज होता है सीजन। तो आपका एक टाइम स्वेटर ना पहनना वो आपको बीमार करता ही करता है, दैट्स द टाइम मोस्ट इंडियंस फॉल इल, एटलीस्ट इन द नॉर्थ। तो मैं बहुत बुरी तरह बीमार थी, मतलब आई रिमेंबर ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में तो मुझे दिख भी नहीं रहा था, आँखों से आंसू और ज़ुकाम जब होता है ना आपको, तो वो आंसू भी बहते हैं आपके, मेरी वो हालत थी। आई हैड मैसिव हेडेक, क्योंकि आपको अगर पूरा दिन आपने स्नीज़ किया है, एंड अब मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गई थी तो इसलिए मेरा वो नहीं था। आई डिड क्लियर दैट अटैम्प्ट, बट माई पॉइंट इज़ उस टाइम पे मैं ये गा सकती थी अपने घर में कि देखो जी मेरा रैंक इसलिए अच्छा नहीं आया क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी। अरे उसी रात बीमार पड़ी थी ना, अगर बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई करी थी उस साल तो फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मतलब पॉइंट इज़ वो तो किसी और के साथ भी हुआ होगा ना, खाली मैं थोड़ी थी। ठीक है कोई बात नहीं, आप दवाई खा लो, आपने स्वेटर भी तो नहीं पहना, आप स्वेटर पहन लेते ना, आपको पता भी तो है, मतलब इतने बेवकूफ़ तो आप नहीं हो कि आप ये ठंड को आप वो कर लेते, तो आप शायद एग्ज़ाम टाइम था थोड़े और केयरफुल हो जाते। तो वो भी तो मेरी गलती है ना कहीं पे, बट मैं उस चीज़ को ये बोलूँ कि जी ये हो गया था, it's never that one moment, right? It's a lifelong of decisions that you have made which define those moments. वो रिजल्ट एक मोमेंट में ही आएगा। तो मैं ये मानती हूँ कि वो चीज़ को आप ये भी गाते रह सकते हो। मैंने आज से पहले कभी बोला नहीं है कि ऐसे हुआ था मेरे साथ, और मेरी मम्मी बोलती है कि बहुत ही बीमार थी उस टाइम पे जब भी पेपर देने गई, बट मतलब ये कोई वो नहीं है ना एक्सक्यूज़। 2010 से लेकर 2014 तक आपने 4 बार अटैम्प्ट किया, और ऐसा नहीं कि आपने कोई भी क्लियर नहीं किया, यू क्लियर्ड इट एंड समथिंग और द अदर हैपेंड। सो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कई बार इतने बड़े हो गए कि आप अंदर पहुंच के भी यू कुड नॉट क्लेम दैट सीट, यू कुड नॉट क्लेम दैट पोजीशन फॉर योरसेल्फ। तो उस समय आपके मेंटली क्या चल रहा था आपके दिमाग में, और कैसी सोच आई कि यार नहीं है मैं करना ही नहीं चाहती? जब मेरा थर्ड अटैम्प्ट के बाद जजमेंट आ गया था, तब तो पक्का से मेरा हाल ये था कि ठीक है बस हो गया। लाइक आई सेड राइट, इट्स अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर ऑन ऑल लेवल्स, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, फिजिकल, क्योंकि आप बैठे रहते हो किताब के सामने, और मेरी तो मतलब वो किताबें भी इतनी भारी होती हैं कि मैं तो अपने आप को मूव करती हूँ रादर देन किताब को मूव करना। सो इट्स नॉट रियली अ प्लेजेंट थिंग टू वांट टू गिव इट, एंड आई डिड वांट टू लाइक आफ्टर दैट जजमेंट कि भाई चलो अब ख़त्म हो गया, अब नहीं और दूंगी। बट देन बिकॉज मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी जजमेंट के बाद भी बहुत टाइम तक, तो आई एंडेड अप गिविंग द एग्ज़ाम फोर्थ टाइम, नॉट नोइंग इफ दे वर गोना फाइल एन अपील एंड द केस में गो ऑन। तो मैंने तो इसलिए फोर्थ अटैम्प्ट भी दिया था। अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि खाली बैठ के तुम करोगी क्या, अगर तुम्हें तो यही नहीं पता कि वो अपील में ना चले जाएँ। तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप गिविंग द फोर्थ टाइम। बट सी एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको ना लाइफ में कॉन्स्टेंटली लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो आपको कहीं पे आदत तो है रिजेक्शन को फेस करने की और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स लेने की, क्योंकि आप ना लाइफ में अगर एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दिस कंट्री कुछ भी आपने लाइफ में अगर किया है ना, तो आपने लड़ के ही किया है, क्योंकि आपको कहीं पे एक्स्ट्रा एफर्ट तो मारना ही पड़ा है। आप एक बात सोचिए ना, मेरा केस छोड़ दीजिए, बट मेजॉरिटी बच्चे स्कूलिंग लेना कितना मुश्किल है। आई currently deal with inclusive education and I can guarantee you it is extremely tough for a child with disability to get educated. Today as well. Yes. स्कूल तक जाओगी कैसे? पहले तो अगर आपकी ऑर्थो डिसेबिलिटी है, स्कूल तक जाना कितना मुश्किल है। डू वी हैव एक्सेसिबल रोड्स? डू वी हैव एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट? वी डोंट। तो आपके पेरेंट्स आपको डेली स्कूल छोड़ के जा रहे हैं या लेके आ रहे हैं, राइट? आप साइकिल वाइकल से अपने आप खुद से नहीं जा सकते हो स्मॉल टाउन्स में। तो इट्स अ पेन टू रीच द स्कूल। और फिर आपने स्कूलिंग कर ली, आपने कॉलेज कर लिया, आपने जॉब ले लिया, आपने डेफिनेटली आपको लड़ने की आदत पड़ चुकी है, आपको सर्कमस्टांसेस और रिजेक्शन की आदत पड़ चुकी है, आपको पता है अब आपको आगे क्या करना है। बट येस, वन थिंग वाज कि
अब ये फिर हो गया, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज गवर्नमेंट का मैंडेट है कि वो सबको इक्वल ट्रीट करे, राइट? दैट इज़ द होल पॉइंट. आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज राइट टू इक्वालिटी. एंड वहाँ पे भी आपके साथ ये हो जाए तो आपको लगता है कि यार ये दिस इज़ रियली बैड, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट. तो वो चीज़ थी. बट हाँ, ये तो था कि भाई यू नो आपको कहीं पे वो आदत तो है ही चीज़ों से उस तरह से डील करने की. सो आई थिंक वो नहीं था डिप्रेशन का या सडन शॉक वगैरह. इट्स जस्ट दैट यू डिसअपॉइंटेड कि भाई यहाँ पे भी अब फिर वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी बार बार. तो दैट आई थिंक वाज द मेन थिंग. एंड फॉर माई सेल्फ आई वॉजंट डूइंग इट. आई वॉजंट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ. मैं अगर शायद मेरी बात होती तो मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे पूरा चीज़ ही पता ऐसे चली थी कि और लोगों के साथ भी ये हुआ था. एंड मैं सिस्टम में सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं किसी और के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाऊँ. सो आई पर्सनली फॉट द केस फॉर दैट. माई पेरेंट्स थॉट दैट ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वो चीज़ को उस तरह से देखा. मैंने पर्सनली उसको ऐसे देखा कि दिस इज़ अ रॉन्ग दैट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड मे बी दिस इज़ माई चांस टू करेक्ट इट. And when you look back, how does it make you feel about yourself? I try not to live with regrets, and I'm glad I did that. Because what it does is, it is in a lot of ways changed things for other people, in some ways, in some small ways. And it also gives people कि नहीं कोई बात नहीं, लड़के चीज़ अचीव हो जाती है. A lot of times people with disabilities get disappointed and they leave the fight midway. So शायद ये उम्मीद मिलती हो कहीं पे, आई होप सो, कि आप अगर लड़ोगे तो लड़ाई का एंड होता है जो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है. मैम, इस पूरी स्टोरी में ना, देयर केम अ टाइम व्हेन यू सेड दैट आई वाज रिजेक्टेड बिकॉज आई वाज टोल्ड दैट आई कैन नॉट पुश, पुल और लिफ्ट. एंड देन यू डिड नॉट गेट स्टक. आपने कहा आज कुछ और तूफानी करते हैं, मैं नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा IAS नहीं टॉप कहा. पोजीशन पे चली जाती हूँ. सो माई पॉइंट इज़ वेयर इज़ द लॉजिक इन दैट. ये तो कोर्ट केस का मैटर है. तो द पॉइंट इज़ देयर वाज नो लॉजिक टू दिस. आप क्या मेरे को कुली के काम के लिए ले रहे थे? आप कुली के काम के लिए नहीं ले रहे थे. आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ कुली जिसमें लिफ्टिंग करनी थी और पुशिंग करनी थी और पुलिंग करनी थी. कोई लॉजिक है इस बात का? As an officer, you work on files and you work on computers. So that's how we went to court, right? कि भाई how is the logic of this? Where is the logic in this argument? कि आपके ये रीज़न से हम आपको IRS जो दिमाग लगाने का और पढ़ाई किताबों को डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का काम है वो नहीं करने देंगे. बताइए क्या लॉजिक है? So that is where I went to court. My point is, I follow all rules. People are not meant for rules. Rules are meant for people, right? तो उस तरह से इस रूल का क्या लॉजिक था? So that's when I went to challenge it. So how was it when you got the first position, all India rank, first position? I mean, how was it? Well, I can't even fathom. Yeah. Forget about in UPSC. I can't even fathom in my engineering or my MBA days. वहाँ पे मेरे नहीं आए. So I think मेरे लिए तो वो सिर्फ एक मोमेंट ऑफ रिलीफ था कि अब ये दोबारा नहीं करना पड़ेगा. हो गया बस, और नहीं. That's all that I felt, honestly. मैं कोई मेरे को इतनी ईगो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मुझे फर्स्ट आना है या वो कभी हुआ ही नहीं. I can't study for glory, or I can't study for that मतलब that's not my achievement. As you use the word social prestige. हाँ, मैं वो चीज़ नहीं कर सकती और मेरे लिए ये चीज़ उस बारे में थी नहीं. मेरा सिंपल लॉजिक ये था, I want to be able to do a job which is a service, not really a job, and where I can make a difference. And this meant that I can now do that. That's it. मेरे लिए सिर्फ इतना था. अगर मुझे रैंक 5000 पे भी मिल रहा होता, I would be just as happy. So for me, this didn't matter. But yes, I will say this. The world perceives it in a different way. तो आज जब मैं कोई चीज़ बोलती हूँ, वो लोग मेरी बात को उस तरह से सीरियसली लेते हैं. इससे पहले जब मैं रैंक 1 नहीं थी, लोग ये मानते थे कि तुम डिसेबल्ड लड़की हो, तुम्हें क्या राइट है कि तुम कोई ओपिनियन दो. दैट्स इट. वो डिफरेंस है. आज मैं कुछ बताती हूँ, कुछ बोलती हूँ, तो लोग उसको सुनते हैं. And during your posting in Arunachal at Tirap, it's one of those small districts that you handled. What was that moment? वो ऐसा क्या था जब आपने एक बहुत ही difficult task को manage किया that proved them that she is capable enough? I don't know
किसी को कुछ प्रूव का फ़र्क पड़ता है या क्या. बट आई थिंक द गुड थिंग इज़ व्हेन यू कम इन टू द सिस्टम एज रैंक 1, आपको बार बार प्रूफ उस तरह से तो नहीं करना पड़ता. But yes, I personally did think I had done a good job because we had the most peaceful elections in the district in recent history. मेरे वहाँ जाने से पहले one of the MLA candidates had been killed in the open market. दिन दहाड़े मर्डर हुआ था मेरे ज्वाइन करने से पहले. And the district was notorious for kidnappings and killings during elections. We didn't have any of that. We had I was very strict. I later became friends with all my MLA candidates, MLAs who became, but at that point I was very strict and I was taking actions against everybody who was creating even the smallest nuisance because I didn't want, peace to be disturbed and lives to be lost, which could very easily happen as it's one of the insurgency districts. So बहुत easily वो सब हो सकता था. And I was very fair and neutral. I had no motives of my own, I had no affiliations, I had no reason to wish someone well or ill. And people knew that that is what is happening. So, we had the most peaceful elections and we had the fastest counting in the state also. So in that situation, कभी ऐसा नहीं हो कभी डर लगा हो कि क्या हो जाएगा? मरना एक बार होता है और डरने के लिए आप इस सिस्टम में आए क्यों? आप लीडरशिप रोल्स के लिए आए हो ना, आप चीज़ें ठीक करने के लिए आए हो ना, तो उसमें डरने का क्या सेंस आ जाता है? अगर डर रहे हो तो मत आओ. और भी बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. पर्सनल सेफ्टी के लिए अगर आप आए हो तो फिर आप कमरे से बाहर मत निकलो. ये रोल्स उनके लिए नहीं है. And also there was another case where you rescued 340 kids. 335 child unwanted because some of them had just achieved the age of 18 on paper. But yeah, so this is over a period of a year. This is not one occasion. We would have 30-40 children rescued in single this thing. This was mainly, I think, by being open to listening to people. आपको ना when you join the system, people come and give you information, and how you react to it and how you take it seriously or not, that then defines the kind of impact you can make in the system. So जब मैंने join किया, some NGOs came to me and they said कि आपके एरिया में जो ये illegal industrial areas चल रहे हैं, वहाँ पे ऐसे बच्चे unregulated employ हो रहे हैं. इनफैक्ट बचपन बचाओ आंदोलन जिसको तभी कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल मिला था, उससे थोड़ा टाइम पहले ही उन्हीं के एनजीओ के लोग आए थे मेरे पास. एंड आई रिएक्टेड टू दैट इन्फॉर्मेशन. आई लिसन टू दैम. वी टुक स्टेप बाय स्टेप. हमने प्लान किया. एवरी सिंगल स्टेप वॉज प्लान. एवरीथिंग वॉज डन. एंड दैट्स हाउ वी मैनेज टू डू दिस वर्क फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट. आई डोंट नो इफ दोज किड्स टुडे आर एक्चुअली हैविंग अ दिस थिंग, बट वी एटलीस्ट गेव देम सम रियलाइजेशन ऑफ what lives they could have. पर उसमें कैसे पता चलता है किसकी बात को सुनना है और किसकी बात को नहीं सुनना? कई बार आप क्या होता है सबकी बात सुनते हो एंड आप चेक करते हो. आप सबको चांस जरूर देना चाहिए. देखिए, उसका मोटिव उस समय में ये हो सकता है कि वो अपने राइवल की इंडस्ट्री बंद कराने आया हो, राइट? बट वो एक की इन्फॉर्मेशन नहीं लाए थे ना, वो तो 10 जगहों की लाए थे. एंड वहाँ पे आपको गलत होते हुए तो मिला ना. सामने वाले का मोटिव कुछ भी हो, गलत काम तो हो रहा है ना. मान लो किसी ने किसी को अबडक्ट किया हुआ है और वो उसे छुड़वाने चाहते हैं और आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आए. एज सच द एक्ट ऑफ अबडक्शन इज रॉन्ग ना. आप थोड़ी वैल्यू जजमेंट करोगे कि इसका मोटिव ये है. आपका काम है, वो गलत काम हो रहा है, मुझे उसे रोकना है. अगर ये भी कुछ गलत कर रहा है तो इसे भी रोको. सो हाउ डज अ डे ऑफ एन IAS ऑफिसर लुक लाइक? मतलब क्या होता क्या है ऑफिस के अंदर? क्या होता है? कैसे लोग होते हैं आपके आसपास? There is no typical day. That is precisely the whole point. Because every day is a new day. You never have a repeat of a previous day. हर रोज़ आपकी टास्क लिस्ट अलग है, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं. समथिंग वुड हैव फॉलन द प्रीवियस डे जिसको आपको फिक्स करना है, या उस दिन गिरेगा जो आपको फिक्स करना है, या कोई और प्रॉब्लम आपको हैंडल करनी है. So you can't really say there is a typical day, but that's the whole point. There is not a typical day. This is not a routine job. This is not, I will do the same thing every day. The whole point is it's a job which is ever changing, day to day, moment to moment. When a person is given that position, वो हर चीज़ पे टेस्ट होता है. फिजिकल पे, इमोशनल पे, साइकोलॉजिकली कैसा है, उसका सिचुएशनल अवेयरनेस कैसी है, उसकी सोशल अवेयरनेस कैसी है. दैट्स द रीज़न वाई इट्स इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आप ना जो डिसीजंस ले रहे हो ना, दे अफेक्ट लाइव्स. सो अगर आप छोटे से प्रेशर को नहीं ले पाते हो जिसमें सिर्फ आप अफेक्ट हो रहे हो,
तो आप इतने बड़े प्रेशर्स को कैसे लोगे जिसमें लाखों लोग अफेक्ट हो सकते हैं? अब नेशनल लेवल पे अगर हम कोई गलत पॉलिसी बनाते हैं तो करोड़ों लोग एक साथ इफेक्ट हो जाते हैं. I see an IAS officer sitting in front of me with a lot of clarity. An IAS officer is sitting in front of me with a lot of courage. ठीक है, उसको पता है कि वो कौन है, उसको पता है कि वो क्या करने के लिए यहाँ पर है, उसको पता है कि उसको कैसे डील करना है और उसको फियरलेसली रोड्स के ऊपर चलना है. पर आई कम अक्रॉस देयर आर सिचुएशंस जो आजकल न्यूज़ में आता है कि एक नए बंदे ने ज्वाइन किया 22 साल 23 साल 24 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट ने क्लियर किया एंड यू सी these people bending in front of politicians. तो उससे जो हम बाहर से जब देखते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं कि इस बंदे ने क्यों क्लियर किया यूपीएससी? जस्ट फॉर द स्टेटस, जस्ट फॉर पैसा कमाना था, पावर चाहिए थी, या फिर इरा बनना था उसको? नहीं, वो तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, बट आई थिंक पर्सनली आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ पीपल कमिंग इन वेरी यंग. Why do you say so? मेरा ये ओपिनियन है. दिस a lot of senior officers disagree with me, but this is my personal opinion. One is because आप अगर बहुत यंग आते हो, आप के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, बिकॉज यू नेवर टेस्टेड योर सेल्फ इन रियली टफ टाइम्स, राइट? तो आपकी टेस्टिंग ना वो वहीं पे होती है एंड वहाँ पे आपके पास खोने को इतना सारा है कि आप फिर बकल डाउन कर जाते हो. जब आपके स्टेक्स कम होते हैं और आपने अपने आप को टेस्ट किया होता है ना, तो आप धीरे धीरे अपना मेटल बिल्ड करते हो. आई पर्सनली थिंक कि हर किसी को एटलीस्ट 2 साल के वर्क एक्स के बाद यहाँ आना चाहिए. वो वर्क एक्स का आपका ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे वो आपका मास्टर्स के बाद हो, चाहे वो किसी भी स्टेज पे वो हो, बट आई ऑनेस्टली फील 2 years फुल टाइम वर्क एक्स के बाद ही आपको इसमें आना चाहिए. उसका रीज़न ये है, पहली चीज़, आप अपने काम में बहुत गलतियाँ करते हो. पहले जॉब में आप हमेशा गलती करते हो. वो गलती एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर हो जाए जहाँ इतना बड़ा इफेक्ट ना आए, आपके लॉन्ग टर्म करियर ना इफेक्ट हो जाए, आपका इतना इम्पैक्ट ना हो, लोगों पे इम्पैक्ट ना हो, दुनिया की ज़िंदगियाँ बदलते हो आप उस मोमेंट में. आपका एक डिसीजन गांव की ज़िंदगियाँ बदल देता है, राइट? व्हेन यू आर एसडीएम. तो शायद वो आपके लिए भी बेटर है और सोसाइटी के लिए और देश के लिए भी बेटर है. तो दैट्स वन थिंग. दूसरा चीज़, आपका मोटिव्स आपको इतने क्लियर नहीं होते एट दैट यंग एज. आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आपको वो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? एंड आपको वर्ल्ड का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है टू बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्ल्ड यू गेटिंग इनटू. जो आप एक चीज़ पूछ रहे थे, जो मैंने कहा कि आई डेंट कम इन यंग, सो मैं वो मिथ लेके नहीं आई एंड आई डेंट कम इन कि क्या वो वर्ल्ड वैसा ही था जो मैं इमेजिन करती थी. मैं कुछ इमेजिन ही नहीं करती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लेने नहीं आई थी ना, मैं तो देने आई थी. लोग ये सोचते हैं कि हम ये इमेजिन करके आए थे. मैं कुछ इमेजिन नहीं करके आई, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ लेने नहीं आई थी. मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उसी घर में रहती हूँ, तो मैं वहीं रहती हूँ, मेरे वही दोस्त हैं, कुछ सर्विस के फ्रेंड्स भी हैं आज, बट दैट्स इट. और कुछ चेंज नहीं है मेरी ज़िंदगी में. मेरे वही स्टाफ, मेरा जो घर में डोमेस्टिक हेल्प है, ही इज़ बिन विद अस फॉर 22-23 years. तो वही लोग हैं मेरी ज़िंदगी में. तो दैट इज़ द होल पॉइंट. आप उतने यंग आते हो तो आप लेने आए हो. तो अगर मुझे लेना था तो मैं कॉर्पोरेट में थी ना. मैं तो अच्छी, मतलब आज से कोई 20-30 टाइम्स सैलरी पे होती मैं. आज जो मैं सैलरी अब कमा रही हूँ वो मैं कॉर्पोरेट में अपने फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग में कमा रही थी इन 2008. देखिए, फैक्ट ये है, 10 लाख लोग पेपर देते हैं, 1000 ही क्लियर करेंगे. तो ये रियलिटी है कि बहुत लोगों की ज़िंदगी सिर्फ फालतू में बर्बाद हो रही है, और कोई भी एक बार अटैम्प्ट देते हैं, एक बार में नहीं छोड़ता. सब 2-3-4 साल तो लगाते ही लगाते हैं, है ना? तो इतने साल आपके बर्बाद हुए, क्योंकि आपके पास ना, अगर आप खाली ग्रेजुएट थे तो ज़्यादा खोने को नहीं था. आपको कुछ तो करना ही है ना, तो यही कर लेते हैं. बट अगर आपने कुछ और किया हुआ है और आप उसे खो के आ रहे हो, जो हमने किया, तब आपको पता है कि आप किस लिए आ रहे हो, आप क्यों वो चीज़ छोड़ रहे हो, क्यों, तो आपको कहाँ जा रहे हो. बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लियर होना. एंड योर स्टेक्स शुड बी क्लियर. एंड जब आपके वो स्टेक्स उस तरह से होंगे, तभी आप वो डिसीजन सेंसिबली लोगे. पर मैम, आपको लगता नहीं है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास वो क्लैरिटी होती है, वो क्यों करना चाहते हैं? आपको उतनी क्लैरिटी नहीं भी होगी, बट तब भी कुछ लेवल की तो आएगी. एटलीस्ट इतना तो होगा कि जो पहले जो आपकी गलतियां हैं वो आप कहीं और कर चुके हो, जहाँ स्टेक्स थोड़े कम थे. तो जब आप एक सिस्टम में आ जाते हो, हाँ. पीपल से दैट वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक अ चेंज इज टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, जिसको आपको चेंज करना है. आप बाहर से तो कुछ भी बोल सकते हो, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक सिविलियन पूछना चाहता है कि जो बाहर से दिखता है और जो अंदर होता है, ऐसा होता है, डू यू हैव दैट स्पेस फॉर योरसेल्फ टू मेक चेंज, और कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं दे आर ड्राइविंग द वर्ल्ड? नहीं, ऐसा नहीं है. एज ऑफिसर्स मोस्टली चीज़ें आपसे ही इनिशिएट होती हैं.
आपसे ही फाइलें बनती हैं, आपसे ही आइडियाज़ जनरेट होते हैं. यू आर द वंस हु हैव द सिस्टमिक नॉलेज, यू आर द वंस हु हैव द सिस्टमिक एक्सपीरियंस ऑफ हाउ थिंग्स आर एग्जीक्यूटेड, व्हाट हैज़ बिन द पास्ट, व्हाट हैज़ वर्कड, व्हाट हैजंट वर्कड. सो मोस्ट थिंग्स आर जनरेटेड बाय ऑफिसर्स. ऐसा नहीं होता. Politicians have a general broad idea, उसको शेप आप देते हो, and a lot of things you initiate also. So ऐसा नहीं है. आपके पास बहुत स्पेस होती है, एंड आइडियाज डू गेट फिनिश्ड एज लॉन्ग, मतलब कंप्लीटेड एंड एक्चुअली ऑन ग्राउंडेड, एज लॉन्ग एज सबकी इंटेंशन सेम हो. दिक्कत वहीं आती है जहाँ बीच की चेन में इंटेंशंस अलग. कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपकी कुछ एक इंटेंशन थी और किसी एक पॉलिटिशियन की, विदाउट नेमिंग एनीवन? नहीं, नॉट विद पॉलिटिशियंस. आई हैव हैड दैट विद ऑफिसर्स, बट नॉट विद पॉलिटिशियंस. हाउ डिड यू हैंडल दैट डिफिकल्ट? कोई बात नहीं, कभी और करेंगे, किसी और टाइम पे करेंगे. सो आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन, और मेरी ना ईगो नहीं अटैच होती. अगर उस टाइम पे वो चीज़ नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, आई एम श्योर दैट विल कम अनदर टाइम, कहीं और, किसी और फॉर्मेट में, किसी और तरीके से. यू डोंट गेट स्टक. यू नो, वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और मैं आपसे कभी और पूछूंगा, वो क्या कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन है मेरा, कांस्टेंट क्वेश्चन है. कोई पेशेंस कितना हो सकता है? कोई इतनी डिफ़िकल्टी को कैसे झेल सकता है? 4 साल वेट करना एक एग्ज़ाम के लिए कैसे कोई कर सकता है? यू नो, ऑल द बॉक्सेस दैट आई हैव फॉर व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन, वो सारे टिक हो रहे हैं मेरे सामने अभी. थैंक यू. तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि अरे कोई ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई MRI करे तो इसके दिमाग के अंदर क्या निकलेगा? अगर मेरे को किसी को यही मॉडल को रेप्लिकेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बच्चों से ना आप फॉल्स रियलिटी मत दीजिए उन्हें. ना उन्हें पुल डाउन कीजिए, ना उन्हें पुल अप कीजिए. जैसे आई टेल यू ऑनेस्टली, आई हैव एंटर्ड एवरी पेंटिंग कॉम्पिटिशन दैट हैपेंड इन मेरठ व्हेन आई वाज अ किड, बिकॉज दिल्ली में तो पता नहीं चलता वो था, एंड आई एम टेरेबल एट इट. आई एम हॉरिबल एट पेंटिंग. एंड येट यू. हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे हर जगह भेजा. कोई बात नहीं, ट्राई तो करो. इंजीनियरिंग में दी ओनली एग्जाम आई वुड हैव फेल्ड वुड हैव बीन मशीन ड्राइंग, बिकॉज आई वाज हॉरिबल. बट ट्राई तो करो. बट सो आई थिंक दैट इज़ द वन थिंग. आई वन ऑल द स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स ऑन द मैथ्स, मेंटल मैथ्स की चीज़ें, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग इन पेंटिंग. सो द पॉइंट वॉज, you are attempting things you're terrible at, you're attempting things that you're good at, and you're not being pulled, degraded or humiliated for the things that you are not good at, and you're not being extra praised for the things that you're good at. You have to encourage your child, be positive, but also make sure that they work hard at it, they keep working hard at it. And it's okay to fail at something. It's okay that your child is not perfect. Nobody is. So it's okay. Accept that your child is not perfect. Accept that there are flaws and there are things that they're not good at. And how is that a bad thing? So I do a lot of Vedic astrology also, and उसमें यही मानते हो कि आपको वो रीच करने के लिए ही, बिकॉज यू आर फ्लॉड, इसीलिए आप जन्म लिए हो. हम कहते हैं ना, राहु केतु आपके जहाँ बैठे हैं, या शनि या मंगल जहाँ बैठे हैं, वो चीज़ें वो हैं. तो दैट इज़ द होल पॉइंट. आपके चार्ट से हम वो उसे गायब नहीं कर सकते, विच मीन्स एरियाज ऑफ योर लाइफ विच यू आर टेरेबल एट, वो आप गायब नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट देम एंड मूव ऑन एंड डू बेटर एट द थिंग्स दैट यू कैन बी बेटर एट. तो मैम, यहाँ पे हम सिंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ क्या रही है? आई थिंक वी आर अ वेरी रिच कल्चर एंड वी आर वेरी डीप इन आवर थिंकिंग. हम शैलो होते जाते हैं, बट द होल पॉइंट इज़ we were a religion and a culture that accepted everyone. और हम हमेशा, हमारे यहाँ ना बड़ी चीज़ एक अच्छा इंसान बनने को माना जाता था, राइट? हम हमेशा से हिंदुज़म में, हमारे रिलीजन में अच्छा इंसान बनना प्रायोरिटी था. इंडिया में आप कैसे जज करते थे लोगों को कि वो अच्छा इंसान है कि नहीं, है ना? तो दैट वाज द होल पॉइंट कि हमारे यहाँ नॉलेज को, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, उससे वैल्यू किया जाता है. हमारा पूरा रिलीजन इज अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड इट ऑल्सो सेज एक्सेप्टिंग अदर्स एज दे आर. हमारे यहाँ ना जजमेंट हमें नहीं कराया जाता. वी आर सेड कि सबकी कमियाँ समझो, सबको इंसान की तरह देखो, एंड सबको एक्सेप्ट करो. एंड बिकॉज वी आर अ रिलीजन दैट मॉडिफाइड इटसेल्फ एज पर दिस थिंग, हम सर्वाइव कर पाए. So that is I think that's our biggest strength. I'm sure you know this data, that a lot of rich people, a lot of millionaires, people who can afford to go travel and find a space in some other part of the world, they are leaving India. I mean, why is that happening? Is it because of
Some people are saying that's because of the lifestyle, the overall pollution is increasing, the air is toxic. Why are people leaving? To be honest, I have never met anybody who has left. मेरे जान पहचान के मोस्टली जिन्होंने छोड़ा है वो मिलियनेयर्स नहीं छोड़े हैं. They looked for opportunities because हमारे यहाँ because of so many brilliant people and such a huge crowd, standing out is tougher as compared to other countries where populations are less. And मैं कभी नहीं छोड़ूंगी. मैं किसी और का पर्सपेक्टिव नहीं छोड़ती हूँ. हाँ, बिकॉज मैं ये मानती हूँ ये मेरा देश है. मैं कहीं भी दुनिया में जाऊँगी मैं हमेशा इंडियन हूँ. आज भी फिजी में लोग जो 200-300 साल पहले वहाँ पे गए थे उनको भी आज भी इंडियंस ही बोला जाता है. मेरी आइडेंटिटी एज एन इंडियन हमेशा मेरे साथ रहेगी. तो वाई शुड आई लीव दैट आइडेंटिटी एंड गो ट्राई लिविंग समवेयर? वाई नॉट स्टे हियर एंड मेक इट द बेस्ट पॉसिबल दैट आई कैन? अगर सारे इंडियंस इंडिया छोड़ के ये सोचेंगे कि हम दूसरी कंट्री में जाके रहें, पहली चीज़ तो आप हमेशा ना आपकी इंडियन आइडेंटिटी जाएगी नहीं. तो वाई नॉट स्टे हियर एंड मेक इंडिया द बेस्ट यू कैन? तो वाई लीव दैट? इफ़ यू हैव मनी टू स्पेंड, वाई नॉट स्पेंड दैट ऑन रिसर्च अबाउट क्लाइमेट हियर? Why not spend that on making road infrastructure better? Why not spend that on making education systems better? Why not spend that on upgrading the Indian uska lifestyle? You know, I think that's a very wrong way to look at things because हमेशा इंडियन तो रहोगे. तो अगर इंडिया में सारे people who could make a difference भाग जाएंगे तो आप हमेशा उसी तरह से टैग होगे. Every time when I travel, there are few things that people talk about Hindustan. भारत के बारे में जो कहा जाता है, India is the heart of spirituality in the world. हमारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की. इनफैक्ट वी आर द नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. बहुत ज़्यादा करप्शन है. एंड करप्शन, दे से दैट करप्शन इज एन नेसेसरी evil. What do you say? You have been a part of the system. I don't think so. I don't think so. How can anything be a necessary evil? I don't think so. No. But एक बात आप समझिए, हम मंदिर में जाते हैं और पैसे चढ़ाते हैं कि भगवान जी मेरी इच्छा पूरी कर देना. तो हम तो पहले दिन ही करप्शन करने चले गए. आई हैव नेवर गॉन टू अ टेम्पल एंड पेड मनी टू से कि भगवान जी ये कर देना. मैं एक्चुअली कभी अपने लिए तो मांगने गई नहीं हूँ. Even when I was struggling with civil services for that many years, I've never gone and said मुझे ये दे देना या मेरा ये कर. Never. I mean, you never asked anything from God. Not for myself. I ask for other people. I ask for the world. I ask कि please खुशी दे देना सबको या सबको, remove problems and those kind of things. But I've never asked for myself. मेरी किस्मत में मेरे एक्शन से मिलेगा ना मुझे. बट हम क्या करते हैं, हम मंदिर का पूरा सिस्टम ही इस बात पे चलता है. मैं अगर मंदिर में पैसे चढ़ा रही हूँ, that is actually in my head a contribution to keeping the mandir clean and keeping it there for people who need that. That's it. मैं उसको ऐसे नहीं देखती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए तो प्लीज़ दे दो. वो ब्राइबरी मैं वहाँ पे भी नहीं करती और मैं आई डोंट थिंक दैट्स अ नेसेसरी ईवल. मेरे लिए नथिंग इज़ अ नेसेसरी ईवल. आप चाहते हो तो उसे बना लो एंड नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू बी इन दिस जॉब. अगर आपको यहाँ के पैसे कम पड़ रहे हैं, प्लीज़ गो आउट. A lot of officers have actually quit and joined corporate sectors and are earning huge salaries or set up their own businesses. So that means it's possible to not only get into but sustain in a system जहाँ पे corruption है. Yes. तो इसको तो हम डिनाई कर सकते हैं, करप्शन है सिस्टम के अंदर. Absolutely है. और उसके अंदर आप सस्टेन कर सकते हैं. Yes. Don't you feel resistance from other people? So I've been very lucky. I've only had bosses who are also not corrupt. तो I've been very lucky in that. शायद मेरी पोस्टिंग ही ऐसे लोगों के साथ नहीं होती है जिनको ये चीज़ नहीं चाहिए. तो I've not had that resistance. And I've been with politicians also who have not ever been in this thing. Yeah. Who's that one politician that you really admire? I think everybody has their merits and demerits. तो ऐसे एक किसी के साथ admire या वो करने वाला मेरा कुछ वो है नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड क्लोजली विद एनीबडी टू रियली डू दैट. मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ये मानती हूँ कि अपने हीरोज़ नहीं बनाने चाहिए. क्योंकि फिर अगर उनके कोई फ्लॉज आते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उनके साथ आप भी गिर जाते हो. सो मैं ये मानती हूँ कि हर किसी में कुछ अच्छा है
और कुछ बुरा है वो लो और आगे बढ़ो. जब आपके बारे में इंसान पढ़ता है तो बहुत सारी स्टोरीज निकल के आती हैं दैट शी डिड दिस, शी वाज द फर्स्ट डिफरेंटली एबल पर्सन, रैंक 1, एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज दैट यू विल जस्ट फील लाइक रीडिंग मोर अबाउट. Okay. तो एक सिचुएशन हमारे पास आई कि शी वॉज द फर्स्ट वन हु गॉट अ जॉब फॉर अ ट्रांसजेंडर इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. I mean, I tell people कि यार we don't even look at transgenders when you are standing on the traffic light. You look through them as if Yes, they don't even they don't exist. exist. Yes. ठीक है. उनको अपने साथ लेके आना, साथ में बिठाना, साथ में खाना, उनको सेम ओहदा देना, दैट स्टैंड्स फॉर इंक्लूसिविटी. तो उसमें आसपास से कोई रेजिस्टेंस नहीं आया? क्या चैलेंजेस क्या हुए? So the good thing was my boss was supportive. गवर्नमेंट में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि बहुत हायरार्किकल होता है. तो अगर आप वो करो तो लोग जनरली आपकी इंटेंशंस देखते हैं एंड फिर वो मान जाते हैं. उन्हें जॉब देने में मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा था. वो बहुत क्लियर था कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है पर्सनल लेवल पे. What I did was I made sure there was no resistance, because what I did was I collected everybody and I asked them कि तुम्हें जो नेगेटिव आइडियाज़ तुम्हारे दिमाग में हैं, जो भी तुम्हारे फियर्स हैं, सब पूछ लो, सब एड्रेस कर दो. So you invited I called the elephant everybody in the room. in the office, and everybody means not just from my direct wing, everybody who was in that premises, who was an employee, and I called all of them and I said, ask whatever you want. Whatever you've heard, whatever myths, whatever negative ideas you have, please address them, ask, and we'll talk about it. So bring it out in the open, discuss, address it, and then you can resolve it, right? So and क्या हुआ था कि मोस्टली लोगों ने कुछ नहीं बोला. फिर मैंने ही बोला कि अच्छा हम ये मानते हैं और हम ये सोचते हैं और हमें ये सिखाया गया है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट. एंड वट एवर नेगेटिविटी यू बिन टॉट, मैंने सारे वो क्वेश्चंस एड्रेस किए. एंड आफ्टर दैट दोज पीपल हैड अ वेरी गुड टाइम इन ऑफिस. मुझे उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया. एंड दे लंच टाइम पे दे वर सिटिंग विद अदर्स एंड एवरीबडी, एंड दे वर ट्रीटेड एज इक्वल्स. एंड कोई भी काम होता था तो मुझे नॉर्मल तरीके से ही, अरे वो उसने नहीं किया या उसका वो था, उससे पूछते हैं. वो बिल्कुल एसिमुलेटेड थे ऑफिस में, दैट यू कुड realize that they were trans people, there was something different about them. And जो आपने बोला कि मैं इंसानों को ऐसे नहीं देखती कि कौन क्या है तो इस वजह से उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. as long as तुम evil इंसान नहीं हो, caste, color, breed, religion, nothing. My only parameter is the kind of person you are. If you're selfish and you're mean to others and you have evil intentions, that's my cutoff. Got it. Now this is the special section, right? I'm going to ask you few questions and you have to answer with just one word or a sentence. Okay. Let's have a rapid fire question. Okay. Is UPSC the right way to judge merit? What merit? That the person is intelligent and the person can actually handle the leadership roles at the national level. I think it's the best way to judge a person's capacity to work hard. And work hard is probably one of the things that you need in the system. And it's a good way to judge people's analytical skills. Do privileged aspirants dominate UPSC? Yes. Okay. Attempts and age limit. And Fair- by the way, in that previous question, I am also privileged. Okay. I'm also privileged. I come from a family that was very supportive, that did not have financial problems while preparing for this exam. I had my other issues, but let's be honest, I had that privilege. So, yes. Attempts and age limits. Fair or flawed? So one good thing that has happened is that now if you clear you reach the interview, you can get another government job. So in that sense, it's good. But somewhere the way the world has been perceiving it, it is flawed. Got it. When is the best time for an aspirant to move on? If you've not reached the interview stage in 3 attempts, you should move on. Okay. UPSC was created by Britishers almost like 100 years back. So if you look at, is it still relevant today? We're a country that still needs some kind of social sector interventions, and those can only come from the government. The private sector is still not strong enough for that. So yes, it is. Okay. What's the impact on the mental health for people who are preparing for UPSC? Terrible. Tell me more Absolutely about that. horrible.
Because you are struggling to do something repeatedly for years without knowing there is an end, if there is a positive end to it. Yeah. And secondly, it's very tough to admit that maybe you're not meant for the path that you've chosen. Yeah. Thirdly, it's very tough to see your own mistakes and correct them. Yeah. It's very easy to blame everybody else. Yeah. So all of that combines into a terrible mental health crisis. Why do people leave high-paying jobs for IAS? Everybody has their own reasons. My reason was to actually make a difference. Some people's reason is social status and power. But high-paying jobs वाले, it's never कि मैं और ज़्यादा पैसा यहाँ कमाऊँगा. It's somewhere a good positive intention only. Maybe there is the ego problem of the status, but there isn't, there is some good intention definitely. Yeah, yeah. What perks make IAS worth it? I have no perks. I live in the same house. I still have the same, like I said, everything. So I don't know about the perks. You'll come across so many people who are making that reels, right? The uniform, the privileges, and those young people who are in this civil services. Is it pride, or are they on their power trip, or a It is a sense of power trip, no? entitlement? It is that. How can you, what pride? Pride is, see, how can there be pride in something that you have achieved for yourself? You should take pride in work that you've done for others. You spoke about inclusivity. You spoke about that, how you had your own challenges. Now, जिस position पे आप बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि what is that one urgent disability change India needs at the policy level, at the mindset level, at the system level? The mindset change is still in process. It hasn't really happened. But what is happening is that our younger generations are a lot more inclusive. So, it's that as they grow older, the world will have changed. Policy level से तो नहीं, but I would suggest parental level पे there needs to be more acceptance of your children. And that's not just about disability, that is about everything. That we need to have a society where parents don't see their kids as their achievement. आपका लाइफ का जजमेंट आपके बच्चों से ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उनकी हैप्पीनेस के बियॉन्ड वो करो. आपके बच्चे अच्छे इंसान हैं, दैट शुड बी योर जजमेंट, नॉट कि आपके बच्चे कितना कमा रहे हैं या कितने बड़े घर में शादी हुई है या क्या वो है. So I think that's the change that I would like to see. And that's where the whole disability debate also comes in, right? आपका बच्चा disabled है तो उसकी शादी नहीं होगी ना, उसको अच्छा जॉब शायद नहीं मिले ना, मतलब वो उतना पेइंग जॉब ना कर पाए. That is the problem. So I think that's the change that needs That to come in. social stigma we need to Yes. address. Not from the societal perspective anymore, but from the parental perspective. Yeah. To start with from Yes, there. yes. नहीं, start with नहीं, that's the end game. That's the end game. Because बाकी सब हो गया है. आप किसी और की डिसेबिलिटी आज एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने बच्चे की नहीं कर रहे हो. That's the problem. If I take away all the accomplishments that you have had, if I take away that, all the accolades that you have been blessed with, the positions that you have held, the IAS, the Indian Administrative Services officer that you are, who is Ira Singhal? I'm a person who likes to live a life that is made a difference to someone else's life positively, and someone whose only agenda is life to be peaceful, be happy, and make sure other people around me are happy. That's it. And to be honest, I don't actually remember that I'm an IAS like that. मेरे लिए वो चीज़ नहीं है. I've never had that. So yeah, so that's who I am, a person who's simply trying to make sure everybody around them is living the best lives that they can. Thank you so My much. pleasure. बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए, and it has been an absolute joy, privilege, and an honor. Thank you. So thank you. Thank you for having me. Thank you so much, ladies and gentlemen. I'm sure as much as I learned it, you would have learned a lot. I'm sure you would have seen that there's a part of you who would love to be like Ira ma'am. At least I have not come across someone who's as clear as Ira ma'am. In all other episodes, I request you, do share that with people you believe would get benefited from this conversation. This time I'm not going to request you. This time I'm going to suggest you that please do share this conversation with someone you genuinely believe would get benefited. Thank you so much. Do subscribe to our channel, and I look forward to meeting you again.